الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. जनाब सदर मुहतरम, हजरात उलमाए किराम, स्टेज बांदनास, तमाम कबायली मशरान, जुमा डेर द्रनो, इज्जतमंदो, स्पिंजरो, स्पिन पोशो, जल्मो और पे इस्लाम और पखपल पत और नंग बांधे सरशिंदलो मुजाहिदीनों दगा अज़ीमुश्शान इज्तिमा और पदर अज़ीमुश्शान इज्तिमा के सासो दगदरुन शिरकत दा यकीनन मुर्द पारा देर दे इज्जत और दे दरनावे बाइस्ता लकब हुक्म जज्बे और इखलास सासो च मुश्त इज्जत राक अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया और आखिरत के सासो दगा इखलास कबूल की और दे हगे देर लोए आजिम बदला दे अल्लाह तासो ता नसीब की। इमाम मुहतरम औरों, कबायली दुनिया पदगो 13 कालूनों के चलकुम आजमाइशुन तेरस तुम तकलीफुन तासो बर्दाश्त करल तुम वीन चपदे खावर बांधे तोयसवा जमुंगा कुंड रंडे और जमुंग ख्वाइंदे और मैंदे तोर सरे स्पिन सरे लुकोरुन न बेकोरशे वाड़ बची हिजरत बांधे मजबूर सुन दा कर्ब और तकलीफ कि देश पाकिस्तान रियासत हेर की कि देश पाकिस्तान हुक्मराना हेर की लेकिन तारीख बेनहे रवि और पदक मैदान के बदा खबर तारीख लिखी चिप पुख्तनो कबायलो बांधे कम जलम चिप पाकिस्तान के रियासत दलास शवायदा दा दा अग तारीख दा चे कम जलम पमुंग पुख्तनो पिरंगी कड़ाओ नन अग जुल्मुन पमुंग बांधे दे अमरीके और द गर्ब दला सकी। मोहतरम औरों,
کدی غواړي چې دا انضمام ضروري وو نو د انضمام هم څه طریقې مونږ ورته ووې چې په دغه موضوع باندې پارلیمنت کې مونږ سره بحث وکړي پارلیمنت کې په دې بحث نه ده شوی یو نیم کروڑ قبایل چې هغه په هجرت مجبور شول په ټول پاکستان کې وشیندل شول او چې دوی په کورونو کې موجود نه وو نو د دوی مردم شماري وشوه هغه یو نیم کروڑ قبایل نن دوی 55 لکو ته راوستل دا د قبایلو سره یو ظلم او زیاتای ده د قبایلو دغه مردم شماري دا قبایل نه تسلیموي عجوبه تماشه دا ده چې قبایل له خپل ایجنسۍ نه وځي نو دی 100 لکه وي او چې بیا واپس راځي وایي د دوی آبادي 15 لکه ده دا کوم انصاف ده سرکاري رپورټ راغی او په سرکاري رپورټ کې دا خبره ولیکله چې قبایلي ایجنسیو انضمام نه مخکې پکار ده چې 10 کاله پورې مونږ دوی ته 1000 ارب روپۍ ورکو هر کال 100 ارب روپۍ چې په قبایلي سیمې کې سړکونه جوړ شي هسپتالونه جوړ شي سکولونه او کالجونه یونیورسټۍ جوړې شي او د قبایلي خلکو د ژوند معیار بندوبستي علاقې سره برابر شي نو چې ته په خپل رپورټ کې لیکې چې دې لپاره 10 کاله پکار دي دا اجلت نه کار ولې واخیست په تا څه دباو زه خبر یم چې د چا دباو زه ګواه یم چې د چا دباو ما ته په خپله امریکایانو ویلي دي چې تاسو به دا انضمام خامخا کوئ او بیا د پاکستان زورورو د ډنډې په زور په سیاسي جماعتو او په پارلیمنت دا خبره ومنله بغیر د بحث نه په آئین کې ترمیم وکړ ما ورته چغې وهلې چې تاسو که دا فیصله کوئ هم کم از کم قبایلي عوامو نه تپوس خو وکئ په دغه نظام کې دوی 125 کاله تیر کړي دي څلور 15 پیړۍ دغه نظام لاندې دوی تیرې کړي دي دا به په خطې کې یو بله تنازع پیدا کی او که نن ته قبایل په پاکستان کې ضم کوي سبا به هندوستان کشمیر ضم کی ته قبایلو نه تپوس نه کوې هندوستان به د کشمیریانو نه تپوس نه کوي اوس مو ولیده که نه عمران خان دوا کولې چې که مودي کامیاب شو
دا بڑے رخا خبر آئی کشمیر مسئلہ به حل شي نو کشمیر مسئلہ حل شو هم لیده دا د یو کیټګري خلک هلته ټرمپ دلته مودي او دلته عمران خان دا د یو کیټګري خلک اوس وایي چې ګلګت بلتستان به صوبه جوړو هلته کشمیر تقسیم کړ چې د عمران خان حکومت نو راغلی د کشمیر په 3 حصو تقسیمولو فارموله نو پیښه کړې نو چې پرون تا کشمیر تقسیماو نن په خپل حکومت کې ته په هغه عمل درآمد کې مقبوضه کشمیر د هندوستان ته حواله کړ اوس وایي انساني حقوق تباہ کیږي تا په کشمیر باندې د هندوستان قبضه ته قانوني حیثیت ورکړ او اوس وایي چې ګلګت بلتستان به هم صوبه جوړو صوبه جوړو کنه خو چې 15 لکه او 6 لکه آبادی د ګلګت بلتستان 15 یا 6 لکه آبادی د ګلګت بلتستان ته هغې نه صوبه جوړولی شي نو ته د فاټه 1.5 کروڑ آبادۍ ته د صوبې حق ولې نه ورکوې نن قبایل حیران دي خدایا مونږ د چا په واک یو اوس نه اختیار شته او نه د پاکستان قانون شته که ډیپټي کمشنر ولیږي هغه پرې نه پوهېږي چې په قبایلو سیمې زه څه چل وکړم اوس یو سپۍ ته ایس پی والے گیٹے وہ لگولے هغه اسلام آباد کې ونیوی شو د سیسټم نه ټوکې جوړې کړلې اوسه پورې په قبایلي سیمې کې پټواري نشته ولې چې بندوبستي ریکارډ نشته لینډ ریکارډ نشته علاقې او غرونه دا نن هم د قومونو په نام باندې الاټ دي نن چې ته قومونو کې هغه ځمکه تقسیموي نو په هغې به جنګونه جوړېږي آیا قبایل دې دپاره پیدا شوي دي چې دوی به همیشه وینه تویېږي کله به ته د دوی وینه تویوي او کله به دوی په خپلو کې د یو بل وینه تویي په عزت او په امن سره په پاکستان کې دوی ته د ژوند تېرولو حق نشته دا زموږ موقف ده چې هر څه کوه خو قوم په اعتماد کې واخله حالات هغې ته برابر کا ته هر څه په ړندو سترګو کوې د بهرنیو آقاګانو په حکم باندې زما په وطن کې تبدیلیان راځي زما آزادي څه شوه ځکه خو زه وایم چې موږ نن هم آزاد قوم نه یو نن هم موږ غلامان یو پرون د پیرنګي غلامان وو او نن د امریکې غلامان یو خو جمعیت علماء اسلام دا خبره بیا زوتوي چې ما اکابرو پلارو نیکو او مشرانو د پیرنګي غلامي هم نه ده قبله کړې هغې خلاف هم جهاد کړی ده او د امریکې او د یورپ غلامۍ ته هم تیار نه یو
जमावरणों दा वतन द इस्लाम पनुम जोड़ शो है, लेकिन नन पद वतन के प इस्लाम पर टोकी की नन पद वतन के तो द इस्लाम खबर नशे कवले और च द मजहब खबर के नु पेगोर दर कई वेदा खुद मजहब कार्ड इस्तेमाल है। इस्लाम जमा मजहब दा पाकिस्तान दे इस्लाम पनुम जोड़ कड़ा दा कायद आजम इस्लाम नुम अखिस्त और पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह नारे लगवला और दा इस्लाम कार्ड नो नन हम मात हक दा चीज पद वतन के ला इलाहा इल्लल्लाह नारा पोर्तकम पद वतन के इस्लाम नारा पोर्तकम पद वतन के इस्लाम कानून खबर कम और जमा द पाकिस्तान आइन दावाई चीज वतन कानून बा द कुरान ताबीन जमावरणों तो पाकिस्तान के बदे इस्लाम खबर रखेगी और जो सो पूरे पद वतन के इस्लाम कानून नहीं दल तब सुकून नहीं ना खबर ठीक तक है ना तब हम राना पकलार बांधे हुकूमत नशे कवल है छेवारी वतन इस्लाम दिफार जोड़ी और तो दांदले और दरोगो और पगला बंद दे इमरान खान वंद सड़ी हुकूमत जोड़े दाते इस्लाम सर मुखलिसी इमरान हुकूमत मुम न मनो दा दरोगजन हुकूमत दा पगला रागला हुकूमत था बल तगलवाए पखर दे वोट खला खड़े दा अवामना नारे तकबीर नारे तकबीर जमीयत उलमा इस्लाम कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान उसे इंशाअल्लाह पुरुने वतनी दी लगड़ा चरगा देगा खुदा पाकिस्तान पर तारीख के बाद खल्क पर नजर के दा से रटल है हुक्मरान ला नहीं रागल है लकदा रटल है जमहूर में हुकूमत कही तासो पाकिस्तान ने टोके जोड़ी करी दी पाकिस्तान यो वतन दा पाकिस्तान जमा कोर दा और कोर फुल इज्जत लरी कोर फुल वकार लरी कोर फुल एहतराम लरी कि तो जमा कोर सर टोक के कत जरनेल हम पसंद चुप पब्लिक के बदल न गिलो कम प्रेदम दे व्याम ना ये मुल्क पाकिस्तान के अवाम का मुल्क है। इसमें अगर जर्नल रहता है तो इसमें पाकिस्तान का गरीब शहरी भी रहता है। गरीब शहरी का एहतराम और बड़े सरमायादार और जागीरदार खान और नवाब और जर्नल ये एक बराबर के पाकिस्तानी शहरी हैं। हम किसी एक को पाकिस्तान का मालिक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान के अवाम मुहतरम शहरी हैं और पाकिस्तान के अवाम के वोट को चोरी करने की इजाजत
हम किसी को नहीं दे सकते। और चोरी के वोट की बुनियाद पर हुकूमत करोगे तो इंशाअल्लाह सीना तान कर तुम्हारे मुकाबले में आएंगे और तुम्हारे खिलाफ बगावत करेंगे। आज पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें एक प्लेटफार्म पर, एक मंशूर के तहत, एक नस्बुलैन के तहत पाकिस्तान की सियासी जमातें मुत्तहिद हैं कि कौम की अमानत कौम को वापस की जाए। अगर इस मुल्क में आईन है, इस मुल्क में कोई कानून है, तो फिर इसका तकाजा ये है कि अवाम को उसके वोट की अमानत वापस की जाए। अवाम की अमानत पर डाका डालने की इजाजत किसी के बाप को भी नहीं दी जा सकती। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। पाकिस्तान के अवाम जानवरों का रेवड़ नहीं कि जैसे आप चाहें उनको हाँकेंगे और जो चारा उनके सामने डालेंगे वो उसको कबूल करेंगे। पाकिस्तान के अवाम की इज्जत, आबरू और वकार का तकाजा ये है कि इमरान जैसे लोग इस मुल्क के हुक्मरान नहीं बन सकेंगे। ये कौम की इज्जत और नामूस का मसला है। इस किस्म के लोग हमारे हुक्मरान हों, तो किस्मत खबरी दिनों दे तुमरे बदकिस्मत फायदा चिका अवल औलाद खुदा वर का आगाम ना जायज का अवल हुकूमत खुदा वर का आगाम ना जायज। उसका से पुख्ताना खलक है, कबायल खलक है, तो सरुलमानमो पटकी दी और कोली दी इज्जतमंद खलक है। शेर गैरती कौम दा बर्दाश्त कवले सी से 10 कमाश खलक दे पदई बंदे हुकूमतों की बेददी पार्टी खलक माने गिले के वे तो मुझ तो बेगैरत वाले हुए। ये पाकिस्तान है। तुम्हारी हुकूमत में इसराइल को तस्लीम करने की बातें हो रही हैं। रोजाना टीवी पर कोई न कोई आकर ये तहरीक चला रहा है कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, इसराइल को तस्लीम किया जाए। इसराइल को तस्लीम करने में बड़े फायदे हैं, बड़े फायदे हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? कहना तो ये चाहिए था कि फिलिस्तीन को तस्लीम करो, फिलिस्तीनी रियासत को तस्लीम करो, बैतुल मक़दस को उसका दारुल खिलाफा तस्लीम करो। आज तुम्हें अपना मुसलमान भाई भूल गया है। सरजमीन फिलिस्तीन का असल मालिक आज तुम्हें भूल गया है। क़िबला अव्वल तुम्हें भूल गया है। और यहाँ पर असेंबली के अंदर पीटीआई के एक रुकने असेंबली कहती है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि तुम काबे की तरफ रुख करो, तो अल्लाह ने काबा हमें दे दिया और बैतुल मक़दस उनको दे दिया। ये है उनका इल्म। अगर बैतुल मक़दस ये यहूदियों का है तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने क्यों फतह किया उसको? अगर बैतुल मक़दस यहूदियों का है तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्यों फतह किया उसको? क़िबला अव्वल भी हमारा है और बैतुल हराम भी हमारा है, और उस पर इसराइल और यहूदियों के कब्जे को तस्लीम नहीं किया जा सकता। और आज का हुक्मरान जब इस किस्म की बातें करता है और फिर हम कहते हैं यहूदियों का एजेंट है, तो फिर नाराज भी होता है। ये साजिशें आज पाकिस्तान में चल रही हैं। इन साजिशों को किसी कीमत पर कबूल नहीं किया जा सकता।
तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने तहरीक चलानी है, इस हुकूमत के खात्मे के लिए चलानी है, नाजायज हुकूमत के खात्मे के लिए चलानी है। जमहूरियत एक माहौल है, एक सिस्टम है जिसमें हम अपने नजरिए की बात कर सकते हैं, जिसमें हम इस्लाम की बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट है तो आईन ने तस्लीम किया कि इस्लाम पाकिस्तान का ममलकती मजहब होगा। पार्लियामेंट है तो आईन में ये बात तस्लीम की गई कि कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा और हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनेगा। पार्लियामेंट है तो खत्म नबूवत का मसला वहां पर दलील की जंग लड़कर हल किया गया। कादियानियों को पार्लियामेंट के जरिए गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। नामूस रिसालत का कानून पार्लियामेंट के जरिए पास किया गया। ये एक माहौल है, जमहूरी माहौल, जिसमें हम दीन इस्लाम की बात कर सकते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस मुल्क के आईन के मुताबिक चलना है। एक मिसाक पाकिस्तान है और पूरी कौम के दरमियान एक मिसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। इंशाअल्लाह अज़ीज कबाइली आवाम एक प्लेटफार्म पर रहेंगे। आप आहद कर लें कि हमने कबाइली इलाकों में जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा और किसी कुव्वत को पनपने नहीं देना। यही आपकी आवाज है, यही आपकी तर्जुमान है, यही आपका नजरिया व अकीदा है और यही परचम नबवी, ये बरकत का साया है जो आपके ऊपर लहरा रहा है। इसको थामे रखें, इसको ताकत बनाएं। हम इस्लाम चाहते हैं, एक है खुद इस मुसलमान बनना, एक है मुल्क को इस्लामी बनाना। उसके लिए सियासी ताकत बनना पड़ेगा। जब तक आप जमीयत उलमा इस्लाम के प्लेटफार्म पर एक सियासी ताकत नहीं बनेंगे, इस मुल्क में इस्लाम का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकेगा। फिर लोग कहेंगे बातें तो होती हैं, होता कुछ नहीं। होगा तब जब आप ताकत बनाएंगे और सियासी ताकत बनाएंगे और इस मकसद के लिए बनाएंगे कि इस मुल्क में अल्लाह की दीन की हाकिमियत हो। इंशाअल्लाह अज़ीज ये सफर जारी है और जारी रहेगा और फतह तक जारी रहेगा। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाअल्लाह हाथों में हाथ देकर इस सफर को कदम ब कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने मसाइल इंशाअल्लाह अज़ीज सियासी महाज पर हल करेंगे। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ उगाड़े अल्लाह पाक से इज्तिमा कबूल होकर देंगे और ये नमक की खलक जलसे ना